Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing your last maths का revision, that is your maths का important sample paper. ये previous year में से एक important sample paper है जो आज हम discuss करेंगे. इसमें सारे almost important questions है जो आपके exam में आ सकते हैं. There are chances it can may come. So today, as this is your last video for your grade 10 board exams, so let us start. Before starting, make sure to like this video, share it with your friends, and subscribe to channel right away. So, as you know, general instructions are given over here. Where part sections are A, B, C, D, E. A में we have MCQs, B में we have five 2 markers. Section C में we have 3 markers, D में we have 5 markers, and at the end, section E has case study based questions. Okay, so chalo, let us start with our pehla section number A. Make sure आप वीडियो के end तक रहो so that you can understand, get a clear idea about your paper. So let us start with our first section. So आपका पहला question from section A is here. If the sum of zeros of a quadratic polynomial kx square plus 2x plus 3k is equal to the product, then the value of k is how much? It is equal to their product. Okay, अब देखो quadratic polynomial का standard form क्या होता है? We know that it is ax square प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी. अगर आप इसमें कंपेयर करो विद दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, सो हाउ कैन वी राइट इट? कैन आई से दैट ए इज नथिंग बट के? ए की वैल्यू इज के, बी की वैल्यू इज 2 एंड सी की वैल्यू इज फुल 3k. I can write this way, no? We know that sum of zeros is how much? In a quadratic polynomial, sum of zeros alpha plus beta is equals to minus b by a. That means minus 2 by k. Now, product of zeros alpha beta is equals to how much? C by a. अब c क्या है हमारा 3k और a क्या है हमारा k. So if this, तो k क्या हो गया? Cancel. That means product of zeros is nothing but 3, right? So what will be the answer? अब हमको क्या करना है? According to the question, alpha प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन स्टेट करता है, राइट? दैट मीन्स माइनस 2 बाई के इज इक्वल्स टू 3. सो देयरफॉर के की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2 बाई 3. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, next question, again same type का. If one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then value of k is how much? Again k की वैल्यू ढूंढनी है हमको. देखो given that ये हमारा एक पूरा पॉलिनॉमियल है, उनमें 2 0 है. सो इफ आई पुट p of 2, ठीक है, अगर हम 2 की वैल्यू डालें तो व्हाट विल गेट? 2 स्क्वायर plus 3 into 2 plus k will give me 0. 4 plus 6 plus k is equals to 0. 6 plus 4 होता है 10. 10 उधर जाएगा -10. So what will be the answer? Answer is directly answer number B. That is -10. Next question. The two-digit number which becomes 5 by 6th of itself when its digits are reversed. The difference in the digits of number being 1, then the two digits number is what? ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला? 2 डिजिट है, मतलब x, लेट से x होगा और एक डिजिट y होगा. ठीक है, अब x y है तो x क्या होगा? टेंस प्लेस पे है ना, सो 10x प्लस वाई. अब उन्हें बोला है कि टू डिजिट नंबर विच इज 5 by 6th ऑफ इटसेल्फ जब डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, दैट मीन्स 5 by 6th ऑफ 10x प्लस y विल बी इक्वल्स टू रिवर्स, मतलब 10y प्लस x हो जाएगा, राइट? अब इसको सॉल्व करोगे आप, 6 को उधर ले जाओ, यू कैन कैलकुलेट, आपको मिल जाएगा 44x plus 55y. Therefore, we can say that x by y का रेशियो बन जाता है 5/4. Correct? Also, the difference of digits is 1. Difference 1 है. That means x minus 1 is equals to 1. So, if I do this, we can get that x is equals to y. X is equals to 5 and y is equals to 4.
बिकॉज दोनों दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 होता है. सो दैट मीन्स व्हाट इज द 2 digit नंबर, इट इज 54. Okay. Now, next question. For which of the value or values of P will the lines represented by the following pair be parallel? तो हमको ढूंढना है कि कौन सा पैरेलल रहेगा, हाउ दीज टू इक्वेशंस के साथ. ठीक है. अब हमको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वैल्यूज ऑफ P विल बी सेटिस्फाइड. अब देखो, लेट अस से द फर्स्ट वन 3x माइनस वाई माइनस 5 है. ठीक है. इसमें ए लेट से a1 विल बी व्हाट 3, b1 will be equals to -1 और c1 will be equals to -5. करेक्ट. दूसरे वाले में 6x माइनस 2y माइनस p, a1 क्या है हमारा 6 है, b1 is equals to -2 and c2 सॉरी a2 b2 and c2 is equals to minus p, है ना. सो लाइंस पैरेलल होंगी. लाइन पैरेलल आपको कोइंसिडेंट ढूंढना पड़ेगा. a1 बाय a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2. दैट मीन्स कंडीशन में डालो a1 a2 को, -1 बाय -2 इज नॉट इक्वल्स टू -5 बाय -p. So we can say that p is not equals to 5 into 2. That means it is not equals to 10. Correct. So that means how can I conclude the answer? Answer will be what? That अभी इतना तो मिल गया हमको. Correct. ये मिल गया. So that means p is not equals to 10. Right. So answer will be what? All real values except 10 can be the answer. Okay, now here, each root of x square minus bx plus c is equals to 0 is decreased by 2. The resulting equation is this. Then which of this will be true? ठीक है. अब देखो ये equation दिया है कि let us find alpha beta. ठीक है. Alpha plus beta will give me b, correct, और alpha beta will give me c. You guys know by now कि कैसे मिलता है. Now alpha minus 2 प्लस बीटा प्लस, नहीं प्लस नहीं करेंगे, माइनस ही करते हैं इधर. माइनस हाँ, माइनस टू विल बी डिक्रीज बाय 2 है ना. हाँ. सो दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा -4. सो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, b है. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज b-4. ठीक है. b-4 लिख सकते हैं. नाउ अल्फा -2 into beta -2, that is equals to how much? Alpha beta minus 2 times of alpha plus beta plus 4. That means c minus 2b is plus 4. करेक्ट. आप सॉल्व करोगे. नाउ एज पर द इक्वेशन क्या था दूसरा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 equals to 0. So 2 is nothing but our b minus 4. That means b is equals to 4 plus 2, that is 6. अब 1 is equals to c minus 2b plus 4. So c की वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज ट्रांसपोज करो, the value will be 9. So 6 and 9 is the answer. Option number A is your correct answer. Now next question, this one. इसमें आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज हाउ मेनी रूट्स. आपको फाइंड आउट करना है कि कितने रूट्स है. ठीक है. अब देखो इट इज गिवन दैट 0, अगर इसको एक्सपैंड करें a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर रेज टू 2, दैट मीन्स x रेज टू 4 प्लस b स्क्वायर, correct, b square that is let's say 1 only, plus 2x square, correct, 2ab है ना. So 2x square और minus x square as it is, this is equals to 0. Simplify करोगे what will get, x raised to 4 plus x square minus sorry plus 1 is equals to 0. correct. अब x raised to 4 को लिख सकते हैं x raised to 2 raised to 2 plus x square plus 1 is equals to 0. ठीक है. Let us say that x square is equals to y. अगर हम लेते हैं कि x square की वैल्यू y है, so can I say that y square plus y plus 1 equals to 0. हाँ, हमको 0 ही मिलेगा. अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो. डिस्क्रिमिनेंट d will be equals to
b square minus 4ac. Correct? What is b? b is 1, so 1 square minus 4ac. इसमें हम फाइंड आउट करेंगे 4ac. 4 a भी 1 है, c भी 1 है. That gives us -3. So अब क्या मिल रहा है हमको? We can say that discriminant is less than 0 and y square plus y plus 1 is equals to 0. That means there are no real roots. कोई भी real roots इसमें नहीं है. So answer is C to this. Okay. Now seventh question. AP का question है ये. The nth term of the AP A, 3A, 5A and so on is what? अब देखो, कॉमन डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट. कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, यू कैन सामने सामने सी इट. 3a - 3a 2a, 5 - 3a 2a. सो 2a इज योर कॉमन डिफरेंस. 2a तो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है. सो nth टर्म हमको फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स a n विल बी इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d. That means a plus n minus 1 into 2a. Correct? Simplified, you will get it as 2na minus a, that is nothing but 2n plus, नहीं माइनस करेंगे ना इसमें, हाँ, 2n minus 1 कॉमन a. ठीक है. सो क्या कौन सा ऑप्शन में आ रहा है माइनस का? हमारे पास ऑप्शन में है बी. सो बी इज विल बी योर आंसर ओवर हियर. Now, eighth question. If A in an AP, if A is 3.5, D is 0, N is 101, then A N will be how much? अभी हमने कैलकुलेट किया A, how will we find out? A N is nothing but A plus N minus 1 into D. A की वैल्यू दी गई है 3.5 प्लस N दिया गया है 101 माइनस 1 और D की वैल्यू है 0. सो टोटल कितना होगा? ऐड करो एज पर बोर्ड मार्क्स, विल गेट इट एज 3.5 ओनली, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी. तो आंसर विल बी 3.5 नॉट 0. ठीक है. अब देखो एक फिगर दी गई है. In the given figure, DE is parallel to BC. The value of EC is EC की वैल्यू ढूंढनी है हमको. ठीक है. So let us find out how कैसे करेंगे. अब it is given to us. It let me write over here. Given DE is parallel to BC. ठीक है. DE और BC parallel है. So can I say that using basic proportionality theorem, AD by DB will give me AE by EC. I can say that, है ना, हम कह सकते हैं. अब AD की वैल्यू क्या है? 1.5 है. DB की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू है 1. EC की वैल्यू हमको पता नहीं, x. करेक्ट. वो राइट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबको. व्हाट विल यू गेट? 1.5x इज इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स EC is equals to 2 centimeter. So 2 centimeter is your answer. Now, in the figure, on a circle of radius 7 centimeter, tangent PT is drawn from a point P such that PT is equals to 24 centimeter. ये 24 centimeter है. Radius, let's say OR is 7 centimeter. If O is the center of the circle, the length of PR will be how much? ठीक है. PR की लेंथ निकाल दी. नाउ टैंजेंट है, टैंजेंट पास कर रहे हैं. दैट मीन्स OT और PT विल बी परपेंडिकुलर. ये एक 90 डिग्री बनेगा. 90 डिग्री, सो आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम. OT भी रेडियस ही है तो 7. अब हम PO निकाल सकते हैं इससे. PO विल बी व्हाट? PO या OP we can say. हाँ, OP will be equals to what? OP square will be equals to 7 square plus 24 square. So OP will be what? Square root of 49 plus 24 का square 576. Correct. That is 625. So therefore OP is equals to 25 centimeter. ठीक है. 24 सेंटीमीटर वैल्यू OP की हमको क्या फाइंड आउट? हमको PR ढूंढना है. इफ दिस इज 25, OP is 25, OR भी तो रेडियस है 7, so that means 25 plus 7 कर सकते हैं हम. करेक्ट. 25 plus 7 is 32. So that means 32 is the answer to
PR. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। अब देखो, लेट अस से इसको हम सब 90s के टर्म में लिखते हैं। कैन आई राइट कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री। 90 माइनस कितना करेंगे, हम करेंगे माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा, तब हमको मिलेगा पॉजिटिव थीटा। करेक्ट, माइनस हम कर सकते हैं सेक 15 डिग्री थीटा माइनस थीटा, है ना, माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा, राइट। और अभी कॉट के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम, कॉट 90 माइनस 55 डिग्री प्लस थीटा। नाउ कैन यू फाइंड सम रिलेशंस इन दिस। क्या रिलेशन मिल रहे हैं कि 55 प्लस थीटा 15 माइनस थीटा 15 माइनस थीटा दो बार है, सो वी कैन सिंप्लीफाई इट एंड राइट इट एज सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, correct, and minus one more sec 15 degree minus theta, correct, minus tan 55 degree plus theta and plus tan theta। tan का कर सकते हैं, वाई हाउ कैन वी डू दिस, बिकॉज ऑफ दी 55 प्लस थीटा दो बार है, 15 माइनस थीटा भी दो बार है, सो वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ आई। सब देखो, ये दोनों कैंसिल, सेक सेक कैंसिल, tan tan भी कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या बचा सबका करके जीरो। सो इन शॉर्ट द आंसर इज जीरो। Okay, now next question. Next question says that 12th question, if the angle of depression of an object of from 75-meter high tower is 30 degrees, so then the distance of object is how much? देखो, let us say ये मेरा object है, this is the object, let's say this is your ground B, ठीक है। अब ये टॉवर की लेंथ है, ओके, AB, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया, राइट, सो इफ आई जॉइन दिस, डिप्रेशन कौन सा बनेगा, दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 30 डिग्री, करेक्ट। अगर वो 30 से ऑल्टरनेटली एलिवेशन भी इक्वल है, सो ये भी 30 डिग्री है। 75 मीटर हाई टॉवर है, करेक्ट, ए बी इज 75, सो व्हाट कैन आई फाइंड, हम tan निकालेंगे तो tan थीटा कर सकते हैं, tan theta will be equals to what, AB by opposite by adjacent, correct, that means tan theta क्या लेते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी है 75 और ओ बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, सो दैट इज ओ बी रहने देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो ओ बी विल बी व्हाट, ओ बी विल बी 75√3 मीटर, दैट इज योर आंसर। क्योंकि ये तुमको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉवर कितना है, ओ बी इज द डिस्टेंस, ठीक है, सो सी इज योर आंसर। Now, in the adjoining figure, OABC is a square of side 7 centimeter. ठीक है, साइड उसकी 7 सेंटीमीटर है। OAC is a quadrant. It is a quadrant of a circle with center O. The area of the shaded region is how much? Quadrant मतलब सर्कल को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स निकलते हैं, ठीक है। So that means I can say that OCB7 is square, so that is the radius I can say, correct? Because O is the center of the circle. So what will be the required area? Shaded region ka, how can I find it? We can say that R square minus 1/4 है, quadrant है, into 22/7 into r square will give me quadrant के लिए ये formula you can use. So 7 square minus 1/4 into 22/7 into 7 square से हमको shaded region मिल जाएगा, ठीक है। That is nothing but 7 square is 49, ये एक 7 गया, so you'll get it as 38.5 minus, ठीक है। So when you get it, what will be answer? Answer will be option number A, 10.5 centimeter. Next one, if the radius of a sphere is increased
the radius of a sphere is increased by 100%, the volume of the sphere is increased by how much percentage? ठीक है, अब देखो वॉल्यूम इज हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ रेडियस, वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब इफ वी इंक्रीज रेडियस बाय 100%, तो रेडियस हो जाएगा 2r, करेक्ट, रेडियस हो जाएगा कितना, 2r हो जाएगा, और इनिशियली r है, सो 2r हो जाएगा, सो ये r तो इतना है, v 2r विल बी हाउ मच, v ऑफ 2r विल बी इक्वल्स टू 4/3 pi 2r का whole cube, isn't it? That means 4/3 pi into 8r cube, isn't it? ये मिलेगा हमको. So now the new volume क्या है, आपको 8 को बाहर ले, so 8 times है, 8 times है, hence अगर रेडियस इंक्रीज होता है बाय 100%, so corresponding volume will क्या हो जाएगा, 800%. सो इंक्रीज कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज योर 700%. 800 माइनस 100 करोगे. Now, median and mode respectively of a frequency distribution is 26 and 29. The mean is how much? Median दिया है, mode दिया है, ठीक है. अब we know that mode is equals to 3 times of median minus 2 times of mean. So that means 29 is equals to 3 into median, that is 26, minus 2m. So what will be the value of m over here? आपको simplify करना है. M will be nothing but 78 minus 29, that is 49. 49 by 2, that is 24.5. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो 24.5 is your corresponding mean. Okay, now an event is very unlikely to happen, its probability is closest to very unlikely to happen. मतलब is very unlikely means वो जीरो से सबसे नजदीक होगा, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये, ठीक है. सो दैट मीन्स सबसे जीरो से क्लोजेस्ट कौन सा है, 0.0001, ठीक है. सो दैट इज द अनलाइकली. Centroid of a circle whose vertices are this and this is what? Centroid of the circle. ठीक है. अब देखो ये आपको दिया गया, centroid will be what? Centroid के लिए what we will use? All the coordinates, x coordinates, ठीक है, x1 x2 x3 divided by 3, comma y के सारे y1 y2 y3 divided by 3. These will be your coordinates, ठीक है. So सारे coordinates को डालो, what will you get? 3 plus minus 8 plus 5 divided by 3, comma y क्या है, -7 plus 6 plus 10 by 3. So you will get it as 0/3, comma 9/3. अब ये तो ऑप्शंस में नहीं है, दैट मीन्स यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर, आप इसको लिख सकते हैं 0,3. सो 0,3 इज योर आंसर, ठीक है. 17th क्वेश्चन इज डन. 18th question. If the distance between the points A and B is 5 units, then the values of P will be what? P coordinate आता है किसमें, हमारे इस वाले में आ रहा है in A. So if I use distance formula, x square root of x square minus x1 whole square, ऐसा use. So what you will get? We will get it as 25 is equals to 9 plus p square. So p square will be equal to 16. So that means plus or -4 is the value of p. आप कैसे यूज आउट करोगे, विद द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1 whole square प्लस y2 minus y1 whole square से आप फाइंड आउट करोगे इसको, ठीक है. सो प्लस और -4 विल बी आवर आंसर. Of assertion reasoning, the value of y is 6, for which distance between the points P and Q is 10. So इसकी value x होगी. Is that true or is that false? अब देखो पी क्यू की बात करें, सो पी क्यू इज नथिंग बट, आई कैन से दैट पी क्यू इज नथिंग बट 10. सो पी क्यू स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा 100. 10 minus 2 whole square plus y plus 3 whole square is equals to 100. That is what it is implying. So that means y plus 3
whole square, 10 minus 2 whole square को उधर ले जाएंगे, it will become minus 64. So this is equals to 36. That means y plus 3 is equals to positive or negative of 6. So that means y can either be 3 और इट कैन बी -9. सो इसमें तो बोल दिया गया है 6. सो पहला स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग. पहला रॉन्ग है, दैट मीन्स ऑब्वियसली डायरेक्ट आंसर विल बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ठीक है. Now, last question of MCQs, that is the 13 by 3125. 13 by 3125 is a terminating decimal. 3125 can be written as how? 5 raised to 5. 5 raised to 5, can I write it as 5 raised to 5 into 2 raised to 0? I can write this, it won't make any change. Now, the factors of denominator कितने होंगे? Denominator के factors are 5 raised to 5 into 2, in the form ऐसे लिखते हैं. So 13 by 3125 is a terminating decimal. ठीक है, वो terminate करता है. क्यों? Because if q is 2 raised to m, 5 raised to n, where m and n are non-negative, so pq will be terminating. So hence both of them are true and r is the correct explanation. ओके. अब चलते हैं हम सेक्शन बी के ऊपर. ओके, सेक्शन बी ऑफ 2 मार्कर्स. ठीक है. अब उन्होंने बोला है इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज पैरेलल, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी. प्रूव दैट ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए. ठीक है, हमको वो प्रूफ करना है. एज पर द कंडीशंस हमको जैसे दी गई है, लेट अस ड्रॉ वन ट्रायंगल. ठीक है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम. ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगल. ओके, लिटिल बिट मेसी ट्रायंगल. ओके, हाँ, ठीक है. ये आपका ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर. लेट्स से दिस इज अ परपेंडिकुलर ए बी डी सी. ठीक है, अभी परपेंडिकुलर लाइन बना. आई डोंट नो, हमको प्रूफ करना है कि ए पे राइट एंगल बनेगा और ए बी सी इज राइट एंगल. अब क्या बोला उन्होंने? दे हैव सेड दैट ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इनटू सी डी. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अस द कंडीशन. That means I can say that AD by CD will be equals to BD by AD. I can say that क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम स्टेटमेंट मिल जाएगा, राइट. सो आई कैन से दिस मच. ठीक है, इतना लिख देंगे. सो एंगल डी जो है 90 डिग्री है. सो कैन आई से दैट बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल ADC is similar to triangle BDA. वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल है दो और एंगल इक्वल है. सो इफ आई से दैट by CPCT I can say that BAD will be equals to angle ACD. Corresponding angles are not CPCT, corresponding angles of similar triangles, correct. So even DAC will be equals to angle DBA, right. So if I add all the angles of the triangle, triangle BAD plus angle ACD plus angle DAC प्लस एंगल DBA कितना मिलेगा हमको? 180 डिग्रीज, राइट. कॉमन ले लेंगे, BAD 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC बिकॉज एंगल्स इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट. सो BAD एंगल BAD प्लस एंगल DAC will be 90 degrees. That means in total BAD और DAC क्या है? Angle A here, its angle A is 90 degrees, hence proven. ठीक है, that's how you will solve it. In the figure, a circle touches all the four sides of a quadrilateral. Okay, ABCD. AB is 6 centimeter. चलो values लिख देते हैं. AB is 6 centimeter, BC is 9 centimeter, CD is 8 centimeter. Then we have to find the length of AD. ठीक है, AD की लेंथ हमको ढूंढनी है. नाउ लेट अस से हम सारे साइड्स का मिड पॉइंट्स निकालते हैं. लेट से ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट और यू कैन से कनेक्शन पॉइंट, ये भी और ये भी. लेट्स नेम इट एज P Q R and S. ठीक है. Now, tangents drawn from any external point are always equal in length. ठीक है, let's say ये tangent ही है ना. So we can say that AP is equals to AS. AP और AS will be equal to each other because tangents है.
लेट्स से दोनों की वैल्यू इज x। ठीक है। सिमिलरली बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, आर डी इक्वल टू डी एस, है ना। सो राइटिंग इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखते हैं, बीपी इज इक्वल्स टू ए बी minus AP, that means 6 minus X. So that means BQ and BP are equal, so BQ की value is minus 6 minus X. Similarly, CQ, CQ is equals to BC minus BQ. So क्या है इसकी value 9 minus 6 minus X, ठीक है, that is nothing but 3 plus x. Similarly, CQ or CR be equal, so CR will also be equals to 3 plus x. Similarly, solve करोगे, you will get RD equals to DS, that is equals to 5 minus x. ठीक है। अब AD की बात करते हैं जो हमको फाइंड आउट करना है। AD will be nothing but AS, करेक्ट, AS प्लस DS हमको पूरा AD बना के देगा, राइट। सो दैट इज नथिंग बट x प्लस 5 एंड माइनस x, करेक्ट। सो क्या आंसर है, एक्स एक्स कैंसल हुआ, आंसर मिला 5, सो 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है। अब देखो, tan 2a is equals to cot a minus 18 दिया गया, सो कहने से अगेन cot को क्या हम लिख सकते हैं एज cot 90 डिग्री माइनस 2a, करेक्ट, इज इक्वल्स टू cot a minus 18 degree, yes we can say like that, है ना। that means 90 degree minus 2a is equals to a minus 18 degrees, right, that is what we're implying over here। so 3a is equals to 90 degrees plus 18 degrees, in total 108 degrees। 3a की value, so a will be how much, a will be 36 degrees acute angle। okay, now 24th question, find the mean of the following distribution। एक distribution दी आपको, उसकी mean ढूंढनी है। I'll quickly construct your table जो आपको बनाना पड़ेगा। okay, then we will continue। So this is how you will get your table of your frequency, mid value and fi, x and total। अब अगर हम summation करें of these three, fi का पूरा summation will be 40। Similarly, summation of fi xi, that will give me 326। ठीक है। अब मीन हमको निकालना है, so mean is equals to summation of fi xi divided by summation of fi, that means 326 divided by 40, that gives us 8.15। so 8.15 is the mean of the data। okay, now next question, explain why 25th question कहता है, you have to explain why 7 into 3 into 11 plus 11 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 are composite numbers। अब देखो, पहला वाला जो है आपका 7 into 13 into 11 plus 1, I can 11 that can be written as 11 into 7 into 13 प्लस 1, 11 को कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट यू विल गेट इट एज 11 into 92। सिमिलरली ये दूसरे वाले का इट कैन बी रिटर्न एज 3 कॉमन into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1, करेक्ट। एंड एक और इधर प्लस वन भी आएगा, है ना, प्लस वन, दैट गिव्स अस नथिंग बट 3 into 41 into 41। अब दोनों में यू कैन सी देयर आर मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, सो दैट मीन्स द नंबर्स आर कॉम्पोजिट। नाउ सेक्शन 3, सेक्शन सी पे चलते हैं ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन। अब दिया गया हमको सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32। ठीक है, एपी का दिया गया कि 32 है एंड रेशियो द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट टर्म इज 7:15। फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स को ढूंढना क्या होगा। सो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, लेट्स से a minus 3d into a minus d into a plus d into
सॉरी, कॉमा 3D, ये हम ले सकते हैं कि ये एक AP है, ठीक है। एज पर द स्टेटमेंट द सम कितना इन सबका ऐड करके यू विल गेट इट एज 32 सम इनका। दैट मीन्स 4A is equals to 32 and A की वैल्यू is 8। You can add all the A's, मिल जाएगा, ठीक है। So that means I can say that A minus 3D into A plus 3D divided by A minus D into A plus D will give me 7/15 रेशियो है फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। अब देखो, कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट एज 64 माइनस 9D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस डी स्क्वायर, दैट इज 7/15। सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड डी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव 2। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। सो दी एपी क्या होगा आपका 2 6 10 एंड 14 या 14 10 6 एंड 2। ठीक है, सो ये आपका बनेगा एपी। हाउ विल यू डू इट? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cot theta plus cosec theta minus 1 by cot theta minus cosec theta plus 1 is equal to 1 by cot theta by sin theta। ये प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लेंगे अपना। कॉट को हम लिखेंगे कॉस बाय साइन, करेक्ट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, LHS को सॉल्व कर रहे करेंटली, प्लस कोसेक मतलब 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अगेन सेम थिंग cos theta by sin theta minus 1 by sin theta plus 1। when you simplify it, अब आपको क्या करना है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करोगे एंड एट द एंड यू विल गेट इट एज 1 प्लस कॉस थीटा, करेक्ट, इनटू साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा आपको मिला। यू विल यूज आइडेंटिटीज और वो सब यूज करके एंड एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये यू विल गेट दिस एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई एवरीथिंग आपको एंड में मिलेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जो हमको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन डूइंग दैट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a road which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is this much, find the area of the road। ठीक है, अब width कितनी है, width is 7। ठीक है, let's say that width of the park is 7 meters। then circumference of the park 2 pi r is equals to 88 meters। inner radius कितना होगा, inner radius will be equals to 88 divided by 2 pi, correct, that is nothing but 14 meter। अब outer radius r capital will be inner radius plus the width, that is nothing but 14 plus 7 21 meters। so area of the road will be pi r square minus r square is equals to pi outer radius plus inner radius multiplied by outer radius minus inner radius। so simplify करो इसको, 22/7 into 21 plus 14 and 21 minus 14, that gives you 770 meter square, that is the area of the road। next question, compute the mode of the for the following frequency distribution। एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया आपको, क्या फाइंड आउट करना है इसका, यू हैव टू फाइंड आउट दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना है आपको। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। मोड क्या होता है, वी नो दैट मोड इज नथिंग बट एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू हाइट। ठीक है, सॉरी या सो एल की वैल्यू क्या है, एल इज 12
F1 कितना है हमारे पास, F1 is 17, F0 is 9, F2 is 12 और H की वैल्यू इज 4। हाउ? बिकॉज 12 to 16 जो है वो मॉडल क्लास है हमारी फ्रीक्वेंसीज के हाईएस्ट। इस वैल्यू, इस सारी वैल्यूज को पुट करोगे, यू विल गेट इट एज 12 प्लस 17 माइनस 9 बाई 2 इंटू 17 माइनस 9 माइनस 12 इंटू 4। दैट मीन्स इट विल गिव 12 प्लस 2.46 equals to 14.46। दैट बिकम्स योर मोड ऑफ द क्लास। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। बस वैल्यूज पुट करने हैं, so we won't waste time. Next question. Find the ratio in which P divides a segment joining the points A and B and hence find M. ठीक है, एक segment है, ठीक है, there is a segment. Let us say this is my segment A, P और B. A is 2, 3, P is 4, M, B is 6, -3. ठीक है, so let us say this is your x1 y1, this is x2 y2। अब क्या कर सकते हैं हम, we can say that x is equals to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। ठीक है, now point let p x y लेते हैं उनको, be the point which divide ab in the ratio of k is to 1। करेक्ट, सो ये आपको मिलेगी वैल्यू 4 विल बी इक्वल्स टू k इंटू 6। करेक्ट, k इंटू 6 प्लस 1/2, वी कैन टेक वेरिएबल। ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सो यू विल गेट इधर k की वैल्यू एज 1। सो कौन से रेशियो डिवाइड कर रही है, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, हेंस m की वैल्यू विल पुट y m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 वैल्यू पुट करोगे फॉर y ऑल्सो, सो m की वैल्यू यू विल गेट इट एज 0। ठीक है, सो m इज 0। नाउ next question. Given that root 5 is irrational, prove that 2 root 5 minus 3 is an irrational number as well। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। अब देखो, इन सच क्वेश्चंस ऑलवेज अज्यूम करो, उन्होंने जो बोला है ना 2 √5 - 3, और उनको प्रूफ करना है, हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर है। ठीक है, हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, सो लिखते हैं 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q प्लस 3 हो जाएगा, एंड √5 इज इक्वल्स टू p प्लस 3q बाय 2q। हम ले सकते हैं 2 उधर चला जाएगा एलसीएम लेके। नाउ p प्लस 3q/2q एक रैशनल नंबर है, p एंड q को प्राइम नंबर्स है, थस √5 भी रैशनल है। बट उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि √5 इरैशनल नंबर है, हेंस वी कैन से दैट 2 √5 - 3 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। अब चलते हैं हम सेक्शन डी के ऊपर। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इक्वेशंस दी गई, हमको फाइंड आउट करना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में कौन से होंगे। ओके, नो व्हाट आई वांट स्टूडेंट्स कि ये एक थोड़ा माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, सो आई वांट यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट इट इन द होमवर्क एज अ होमवर्क। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, इफ इट इज करेक्ट आई लेट यू नो। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, हमको प्रूव करना है। लेट अस से पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, पहले एक बनाते हैं हम एक सर्कल। ओके, लेट्स कंस्ट्रक्ट द सर्कल। सर्कल बन गया। नाउ ऑपोजिट साइड ऑफ अ कॉर्नर सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर। ठीक है, अब लेट से हम लाइंस बनाएंगे। ठीक है, विल ड्रॉ सम लाइंस, दिस इज योर फर्स्ट वन। ठीक है, देन लेट से दिस इज योर, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ड्रॉ द डायग्राम एंड शो यू। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज योर क्वाड्रिलैटरल। नेम करते हैं साइड्स को A B C एंड D।
ठीक है, ए बी सी डी। अब हर साइड से ना लेफ्ट, दिस इज माई सेंटर, दिस इज सेंटर, तो हर जगह लेट अस से ये मिड या दीस पर लेट से जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ई एफ जी एच, हर जगह से अब हमको लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी है। हाउ विल डू, हर पॉइंट से इन द सेंटर वी हैव टू प्रूव इट, है ना। सो ए से लेते टू द सेंटर, फिर ई से बी एफ डी एच जी एंड सी। ठीक है, ये सारे ले लिए हमने। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि कितने एंगल्स बने हुए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बने। लेट्स से मिड पॉइंट ओ है हमारा। सो ये बना है, हमको प्रूफ करना है। अभी देखो ओ ए और ओ एफ, ओ ई एंड ओ एफ विल बी इक्वल बिकॉज वो दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब टैंजेंट्स होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, सो दैट मीन्स एंगल ओ ई ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एफ ए, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, isn't it? अब triangle AEO will be similar to triangle AFO. फिगर में देखो हाउ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए और ओ दिस थिंग ओ ए विल बी इक्वल्स टू ओ ए, कॉमन साइड है, देन नाइन एंगल 90 डिग्री, और ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ है। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। इफ द कॉन्ग्रुएंट, एंगल 7 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8। Similarly, angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 6. ठीक है, अब ये हो गया। अब व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हियर, सारे एंगल सर्कल मिड से पॉइंट पे बना रहे 360 डिग्री। दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 360 देगा। अब 1 और 2 इक्वल है, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 plus 2 times of angle 4 plus 2 times of angle 5 can be written as 360 degrees. अब 2 2 कॉमन ले लिया, सो व्हाट विल गेट, 2 उधर चले जाएंगे सारे, 180 बन जाएगा। so that means angle 1 plus angle 8, right, plus angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree. Hence angle 1 plus 8 and 4 plus 5 क्या है, angle AOB plus angle COD, that is 180 degrees. So subtended angles are supplementary. ठीक है, प्रूव हो गया। Now next question is angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from a multi-story building are this and this respectively. You have to find the height of a multi-story building and the distance between them. So with this, we have completed with our today's session. Thank you so much for watching, students. I'll be seeing you in our upcoming videos, and all the best for your final exams as well. I'll be seeing you soon, and till then, take care and goodbye.